Sudarshan साहब, please. पैनल स्पीकर साहब, मैं मेरी पार्टी कुल्हियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से स्पोर्ट्स, हाउसिंग, सिविल सप्लाईज, फॉरेस्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के डिमांड्स पे हिस्सा लेने यहाँ पे ठहरा हूँ। सबसे पहले इन चीज़ों पे बात करने से पहले मैं मेरी पार्टी कुल्हियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उन तमाम खिलाड़ियों को जो ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे इस मुल्क के लिए, उनको नेक ख्वाहिशात अपने तरफ से और अपनी पार्टी की जानिब से देता हूं। और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि ये तमाम खिलाड़ी जो हिंदुस्तान के लिए उस जाकर वहां पर खेलेंगे उनको कामयाबी मिले और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और हमें फ़ख्र हो। मैं साथ ही साथ यहाँ पर ठहर कर मेरी पार्टी कुल्हियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मानू वाकर साहब और सरबजीत सिंह साहब, जिनको ब्रॉन्ज मेडल इस ओलंपिक्स गेम्स में हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने हासिल किया है, उनको मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको और कामयाबी दे ताकि वो ये मुल्क का नाम और रोशन कर सके। साथ ही साथ मैं हमारे रियासत की बॉक्सर निखत जरीन साहब को भी हमारी पार्टी की जानिब से नेक ख्वाहिशात और दुआएं देते हैं कि ये भी कामयाब हो और इस हिंदुस्तान का नाम वो भी रोशन करे। इसके साथ ही साथ मैं हमारी पार्टी कुल्हियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें हमें इस मुल्क को कामयाबी मिली है, और उन तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूं और ख़ास तौर से उस हैदराबाद के लड़के मोहम्मद सिराज जो मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखता है, हमारे नामपल्ली इलाके का जो फसलानसर का ईदगाह है, वहाँ से उनकी क्रिकेट की शुरुआत हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने उनको असबाब बनाया और कामयाबी दिलाई और वो आज इस मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उनको भी मेरी पार्टी कुल्हियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। और इसी के साथ साथ पैनल स्पीकर साहब, मैं स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस पे बात करूंगा। द फर्स्ट डिमांड इन दिस बैच रिलेट्स टू स्पोर्ट्स यूथ सर्विसेज फॉर विच an allocation of rupees 426 crores has been made in the budget. The Sports Authority of Telangana gets 360.85 crores and the NCC is allocated rupees 34.25 crores. Youth services including SETWIN and the TG STEP are provided rupees 227.62 crores. I may recall that SETWIN, that is Society for Employment and Training in Twin Cities, was formed by the then Congress government headed by Dr. M. Channa Reddy Sahab in August 1978 on the demand of Kullhen Majlis Ittehadul Muslimin to impact the skills training to the employed youth in the job-oriented trades to make them employable in private sector. The note on demand for youth services mentions that 8.31 lakh candidates were trained in job-oriented courses and most of them got placement in India and abroad. Apart from imparting training at the 23 training centers of SETWIN across the Twin Cities, 46 courses have been identified for online training and 84,575 candidates were trained in online courses so far. SETWIN also had a transport wing which was operating 100 minibuses on narrow routes in the Twin Cities, but the minibuses have disappeared. There is a need to restart the SETWIN minibus services in the Twin Cities to provide self-employment to the unemployed youth. On the lines of SETWIN, similar societies for training and employment were started in other districts in the state under the aegis of Telangana Society for Training and Employment Promotion. SETWIN and TG STEP are provided a modest allocation of rupees 14.63 crores and the amount is sufficient for the payment of salaries of staff and maintenance
and there is a need to step up the allocation for both SETWIN and TG STEP. I may also point out that the unemployed youth are waiting for the unemployment dole for the last 6 years. Earlier, at the time of assembly elections in December 2018, the TRS, now BRS, had made poll promise to provide unemployment allowance of rupees 3,016 per month to the youth. The jobless youth and women were waiting for the unemployment dole for 5 years under BRS rule. However, the scheme was not implemented as the eligibility criteria and procedural details of the schemes were not worked out. In the 2019-20 voter on account budget, an allocation of rupees 1,810 crores was made for the unemployment doles, but no provision was made in the 2019-20 full budget and the subsequent budgets from 2020-21 to 23-24. In the meantime, the Congress came up with Abhay Hastam Manifesto for the 2023 Assembly elections. The Hyderabad Youth Declaration, issued as part of the manifesto, contains 17 specific promises, including transparent government job recruitment to fill up to 2 lakh vacancies in the first year of the Congress rule. An annual job calendar will be released every year by 2nd June, Telangana Formation Day, and the recruitment will be completed by 17th September, Telangana Integration Day. The Hyderabad Declaration also announced that the monthly unemployment allowance of rupees 4,000 will be given to every unemployed youth till they are provided with employment or livelihood opportunities. The declaration promised that Telangana will be transformed into a state with zero unemployment through centralized online registration portal. Another promise was that 75% reservation to Telangana youth will be provided in private companies established with the government incentives. The declaration also stated that a youth commission will be set up to provide interest-free loans up to 10 lakhs to facilitate education and livelihood opportunities. Yet another promise was to set up a special Gulf cell to regulate Gulf agents and to enhance employment opportunities in the Gulf states. Under young women empowerment, it was announced that electric scooters will be provided to all young women above 18 years of age and pursuing education. I would request the government to give details of the number of jobless youth in the state who would be eligible for the unemployment dole scheme. I would request that on par with boys and men, girls and women who have completed their education but could not get jobs should be paid the unemployment allowance so as to reduce the financial burden on their families. I would request the Honorable Chief Minister Sahab to announce the time frame for the implement of the unemployment dole scheme and other promises made in the Hyderabad Youth Declaration, and to allocate the funds for these schemes in the state budget. Regarding sports, Panel Speaker Sahab, I may point out that the Telangana government has taken a policy decision for construction of sports stadium in each of the 119 assembly constituencies in the state, but only 96 constituencies were covered and work was sanctioned with an estimated cost of 371 crores. However, 23 constituencies are yet to be covered. These include those in the GHMC area. And I request the Sports Minister Sahab to ensure that the work are started in the uncovered constituencies at the earliest. Panel Speaker Sahab, आपके सामने अगर मैं बोलूं तो बल्लागुड़े पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसका काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे स्टार्ट किया गया। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां के अतराफ और अकनाफ के जो यूथ है उनको स्पोर्ट्स के तरफ रागिब किए जाए। मगर अफसोस की बात यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे पैसे सैंक्शन होते हैं, टेंडर्स होते हैं, मगर जब काम मुकम्मल करने का वक्त आता है, जब ओहदेदारों की लापरवाही से एक इनिशिएटिव डिले होता है। वैसे ही फलकनुमा कॉलेज कैंपस में जीएचएमसी की जानिब से एक फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे सैंक्शन किया गया, मगर वो भी बड़ी स्लो पेस में काम हो रहा है।
ये स्टेडियम्स हमारे यूथ की जरूरत है। अगर हम इस हाउस में बैठकर अगर हम यूथ को स्पोर्ट्स के तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ इंकरेज करना चाह रहे हैं तो हमें इक़दाम भी लेना पड़ेंगे, और ये जो काम जो हमने नुमाइंदगी करते हैं इसको मुकम्मल करना पड़ेगा। मलकपेट में एक नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, जमीनात वहां पे आइडेंटिफाई किया जाए, वहां के मलकपेट के नौजवानों के लिए वहां पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर किया जाए। नामपल्ली हल्का जो मेरा हल्का है, वहां पे रेड हिल्स में एक इंडोर स्टेडियम का प्रपोजल जीएचएमसी के पास पेंडिंग है। हाशम ग्राउंड में जो मल्लापल्ली एक मरकज है स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का, वहां के एक बेहतरीन इंडोर स्टेडियम का प्रपोजल जीएचएमसी के पास पेंडिंग है। इनको तेजी में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ ला सके। उसके साथ साथ मोगलपुरे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मोगलपुरे का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बिलखुसूस मेरे फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर उसका सैंक्शन किया गया। बेहतरीन इंडोर स्टेडियम बनाया गया, बैडमिंटन की सहूलत है, हर किस्म के स्पोर्ट्स की सहूलत है, आलीशान जिम वहां पे बनाया गया। मगर अफसोस की बात है स्टेडियम तो वहां पे बन गया मगर वहां के नौजवान उसका फायदा नहीं उठाते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है, चाहे गणेश हो, बोनाल हो या कोई भी दूसरे फेस्टिवल हो, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुलिस के अहदेदारों को लाके ठहरा दिया जाता है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूथ के लिए है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स के लिए है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूथ को मोटिवेट करने के लिए, नहा के रहायशगाह बनाने के लिए। जीएचएमसी का एक ऑफिस वहां पे बना दिया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जीएचएमसी के ऑफिस की क्या जरूरत प्लानल स्पीकर साहब? उनको चाहिए कि वो सरदार महल में जाए, वहां पे बसे। जब एक जगह यूथ के लिए अलोकेट की गई है, उनको मोटिवेट करने के लिए अलोकेट की गई है, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अलोकेट की गई है, तो उसको दूसरे चीजों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये आपके जरिए से मैं हुकूमत के सामने लाना चाहता हूं साहब। कारवान में इंडोर स्टेडियम का प्रपोजल है, एमडी लाइंस कंपनी बाग में, बंजारी दरवाजे में, कारवान में, पानीपुरा में 3 इंडोर स्टेडियम के प्रपोजल जीएचएमसी के साथ पेंडिंग है। शास्त्रीपुरम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्लो पेस में चल रहा है, बड़ी मेहनतों से इसकी नुमाइंदगी की गई और उसको सैंक्शन लाया गया। मगर जब हम ये चाहते हैं कि हम यूथ को मोटिवेट कर सकें, यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब कर सकें, जब हमें अहदेदार साथ नहीं देते हैं और इन कामों को डिले किया जाता है। आपके जरिए से मैं हुकूमत के सामने लाता हूं कि अहदेदारों से एक रिव्यू मीटिंग करिए इन ताल्लुकों से और इन कामों को तेजी में आगे बढ़ाइए। याकुतपुरे में, संतोष नगर में 2 ग्राउंड्स है, उसको डेवलप किया जा सकता है। एसआरटी कॉलोनी याकुतपुरे में बेहतरीन ग्राउंड है, उसको डेवलप किया जा सकता है और वहां के यूथ के लिए स्पोर्ट्स के नए सहूलत वहां पे दिए सकते हैं। आपके सामने साहब एलबी स्टेडियम भी मौजूद है। एलबी स्टेडियम एक बार हैदराबाद की शान थी, आन थी, यहां पे इंटरनेशनल मैचेस किए जाते थे। शायद ऐसा कोई वो आदमी ना हो जिसने यहां पर जाकर हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं लहराया, यहां पर जाकर हिंदुस्तान के लिए आवाज नहीं बुलंद की। मगर आज एलबी स्टेडियम का क्या हाल हो चुका है साहब? मेंटेनेंस नहीं है, कारों का शोरूम बन के पड़े हुआ है। इंडोर स्टेडियम इतना आलीशान एलबी स्टेडियम का है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। किसी किस्म से यूथ इंकरेजमेंट प्रोग्राम वहां पे नहीं किए जा रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं साहब और किस बारे में हम यूथ को मोटिवेट की बात कर रहे हैं? मेंटेनेंस कराना चाहिए। हाल ही में 1 साल पहले एक दर्दनाक वाकया एलबी स्टेडियम में हुआ था, जहां पे एक स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम हुआ था और एक मासूम बच्चा वहां पे एलबी स्टेडियम में एक स्तंभ ना कवर होने की वजह से एक मां ने अपनी औलाद को खो दिया। अगर ये मेंटेनेंस आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हमारा काम है इन कोताहियों को आपके सामने रखे ताकि आपके जरिए से हुकूमत के सामने आए और हम इससे यहां के शहर के लोगों को फायदा पहुंचा सके, सहूलतें फराहम पहुंचा सके। और मैं उम्मीद करता हूं आप इस पे इक़दाम लेते हुए हुकूमत से ये बात करेंगे। दूसरी तरफ यहां पे अगर और आगे स्पोर्ट्स की तरफ देखेंगे साहब, तो उप्पल स्टेडियम यहां पे एक शानदार स्टेडियम बनाया हुआ है। मगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस हाउस का हर एक अफराद जानता है, अगर हम हैसियत को देख लें तो ये बार बार अखबार की जीनत बढ़ते हुए, आपस में लड़ते हुए, ये हैसियत आज अखबारों की जीनत बन गई है आपस में सिर्फ लड़ने के लिए। ये अपने नौजवानों के लिए कब फिक्र करेंगे? ये उप्पल स्टेडियम को और बेहतर करने के लिए कब फिक्र करेंगे? ये ओहदों को छोड़कर नौजवानों को आगे बढ़ने की कब फिक्र करेंगे? ना बीसीसीआई ना यहाँ के जो लोग हैं वो कोशिश भी नहीं करते एक इंटरनेशनल मैच को बेहतरीन तरीके से लाने के लिए। यहां पे आपको इसको आगे कंक्लूड करूं साहब,
यहां पे HCA के जानिब से इंटरनेशनल स्टेडियम हमें बनाना चाहिए, या तो महेश्वरम साइट पे या तो शमशाबाद साइट पे एक अच्छे जमीन को आइडेंटिफाई करते हुए, या सिकंदराबाद के तरफ एक अच्छी जमीन को आइडेंटिफाई करते हुए यहां पे हमें इंटरनेशनल स्टेडियम लाना चाहिए। आगे अगर हम देखें तो मोगलपुरे में एक स्विमिंग पूल है सर, मुझे याद है, अगर मैं बहुत छोटी बात है, 1998 में हैदराबाद में एफ्रो एशियन गेम्स हुए थे। ऐसे गेम्स फिर से क्यों नहीं हो रहे इस रियासत में? ऐसे गेम्स आगे फिर हम क्यों नहीं ला सक रहे हैं इस रियासत में? क्योंकि हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ बात कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। हम यूथ को स्पोर्ट्स के तरफ आगे जाने की बात कर रहे हैं, उसको अमली जामा नहीं बना रहे हैं और उसको वो किस्म का बजट अलोकेशन नहीं दे रहे हैं। हमें चाहिए कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम्स आए और यहाँ पर नौजवानों को हौसला अफजाई हो सके। साहब, यहाँ पे हैदराबाद तो वो मुकाम है जिन्होंने ओलंपिक्स में फुटबॉल प्लेयर्स को भी दिए। हैदराबाद है, हॉकी भी है, फुटबॉल प्लेयर्स भी है। आज ऐसे है जो ओलंपियाड है जो हैदराबाद में मौजूद है, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को इस मुल्क के लिए खेला है। मगर अफसोस की बात यह है कि उनको हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं मिलती। मैं बोलना नहीं चाहिए जनाब, मेरा एक फर्ज बनता है आपके सामने बोलने, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे हल्के में ऐसे 2 ओलंपियाड है जिनकी हर दिन की जरूरत की ख्याल मेरे फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। उनको हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं मिला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर उनका ख्याल रखते हैं। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इससे तो हुकूमत को जिम्मेदारी लेना चाहिए था। इसके अलावा साहब, जब हाउसिंग पे जब आते हैं, प्लीज हुसैन साहब कंक्लूड कीजिए। साहब एक ही डिमांड खत्म हुआ, 2-3 है छोटे छोटे पढ़ लेता हूं, बस खत्म। So housing program में the Telangana government aims to bring dignity to every BPL family by financially and technically assisting them in constructing permanent pakka houses with adequate amenities. The weaker section housing program is implemented to provide houses to low socio-economic sections and BPL families at rupees 5.04 lakh in rural areas and 5.30 lakh in urban areas and rupees 7 lakh and 7.90 lakh per house in GHMC areas. As on 31st March 2024, the government has taken up 2,30,336 houses with a project cost of rupees 15,698.56 crores. So far, 1,54,260 houses have been completed with an expenditure of 12,560.74 crores. 42,047 houses are nearing completion and the balance of 34,029 houses are at various stages of construction. 1,31,237 houses were handed over to the beneficiaries. In 24-25, 228 houses were constructed in Rangareddy district as part of this program. In Indramma Illu, the government has proposed to construct 4.5 lakh houses per annum. That is 3,500 houses in each constituency. The budgetary allocation for Indramma Illu scheme as per the budget book of housing demand number 18 is rupees 2,336 crores, excluding the allocation under SC, ST, SDF. But the amount required would be 10 times more. It could be around about 23,360 crores. If the allocations are pegged at the current rate, only 1/10 of the sanctioned houses in a year will be constructed. We may point out that the Congress government has committed to provide assistance for 25 lakh houses under Indramma Illu scheme, and we don't know how many years it will take to achieve the target. I am reminded that the Honorable Chief Minister Janab Revant Reddy Sahab met Prime Minister Narendra Modi on 4th July and requested him to sanction 2.5 million houses under PMAY and even stated that the state was prepared to align its guidelines with those of PMAY. In the budget of housing, an allocation of 4,644 crores is made for PMAY as a centrally sponsored scheme. There is a need to clarify on the housing schemes in the state, including the fate of 2 BHK housing scheme of the earlier government. Before the assembly election, allotment letters were handed over to beneficiaries of 2 BHK housing by the state administration, and the process of handing over the possession was stopped midway when the model code of conduct came into force with the announcement of poll schedule.
Now the families who were allotted the houses but not handed over the keys are virtually left on roads, as the new government has refused to hand over the positions to them. We request the government to hand over the position of 2 BHK houses to all those beneficiaries who were provided the allotment letters. We believe that the beneficiaries do not change with every change of government. सर यहां पे आपसे एक गुजारिश ये है साहब कि बल्लागुड़े में 2 BHK है, उसका हैंड ओवर बाकी है। जेएनयूएम के उप्पगुड़े में हाउसेस है, उसका हैंड ओवर बाकी है। साहब एक बात यह है कि जब यहां पे इस ऐवान में मेरे ख्याल जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहां पे ठहर कर 2 दिन पहले ये बात करते हैं कि यहां पे ऐसा हालात हुआ था कि ये जमीन मैंने मेरी रिक्वेस्ट पे लोगों से दिलवाई और वहां पे हुकूमत ने 2 BHK बनाया, और जब 2 BHK बनाया और वो लोग आके मुझसे सवाल करते हैं तो यहां पे सवाल होने के बावजूद भी क्यों कलेक्टर जाके वहां पे पोजीशन क्यों नहीं देते? क्यों यहां पे सिर्फ बात को सुनकर खामोश बैठ जाते हैं? कि यहां पे जो बात होती है क्या उनका काम नहीं है कि यहां पे फ्लो लीडर साहब ने ये बात उठाई, उनको चाहिए कि वहां पे जाए, वो देखें और वहां के जो गरीब जो हुकूमत के बोलने पे जो घर खाली करे उनको वापस उनका पोजीशन दिया जाए। क्या पोजीशन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता? आप दिया गया है तो आपको चाहिए सर कि उनसे सवाल करें, उनको कहें कि जाइए हालात का जायजा लिया और वहां पे पोजीशन दिया जाए। साहब मंकाल में तकरीबन पूरा पुराने शहर के जो हाउसिंग है सब मंकाल में दिए गए, पोजीशन सर्टिफिकेट दिया गया और उनको घर नहीं दिया जा रहा, अलॉटमेंट लेटर हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं साहब कि हुकूमत बदली कोई बात नहीं, बेनिफिशियरीज नहीं बदलना चाहिए। गरीब तो गरीब है, चाहे आपकी हुकूमत में आइडेंटिफाई हो या आपकी हुकूमत में आइडेंटिफाई हो, गरीब तो गरीब होता है। हुकूमत बदलने से गरीब को तकलीफ नहीं होना चाहिए, गरीब को परेशानी नहीं होना चाहिए, गरीब की बेबाक आवाज और उसकी सहूलतों के लिए आपको और हमको काम करना है। ये एक करते हुए देख लीजिए साहब, एक छोटी सी बात बस हो रहा हूं। भोजा गुट्टा मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में है साहब। 8 से 8 साल पहले 550 घरों को विवेकानंदा नगर में, जो पूरे मेरे हिंदू भाइयों का घर है, उनको कहा गया कि यहां पे तुमको 2 BHK बेहतरीन सहूलत दिए जाएंगे और 550 घर वालों को वहां के घरों को तोड़कर उनको झोपड़ियों में, झोपड़ी ऐसी है साहब शायद ये जो बेंच पे यहां पे जितना बैठ रहे हैं उतने में वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और जरूरत भी वहीं पे कर रहे हैं। उनकी हालात क्या है मैं मेरे आंखों से देखिए आप। वैसे 550 घर जो यहां पे ठहर के SCs की बात होती है, STs की बात होती है, दलितों की बात होती है, गरीबों की बात होती है। मेरे साथ चलिए गरीब किस हालत में मैं बताता हूं, क्या तकलीफ में वो लोग रह रहे हैं मैं बताता हूं। 8 साल से वो बेघर होके पड़े हुए। मैं KTR साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने उस वक्त वादा किया था कि जैसा होगा हम वहां पे बनाएंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि इन 6-7 साल से ये लोग तकलीफ में हैं, इनको हम हो सका तो ये 7 साल का किराया भी देंगे। मगर हुकूमत आपकी है, आपको इकदाम लेना पड़ेगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने खुद मुलाकात की, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ जाके मैंने रिप्रेजेंट किया। वहां के भोजा गुट्टा के मुकामी लोगों ने ऑनरेबल रेवंत रेड्डी साहब से पर्सनली मुलाकात की। आपसे गुजारिश करता हूं साहब, भोजा गुट्टा के लोगों के साथ इंसाफ करिए, उनको घर बना कर दीजिए। वहां पे करीबन 1840 2 BHK बनना है और वहां पे शिवाजी नगर, श्री राम नगर और खासतौर से विवेकानंदा नगर के जो हमारे हिंदू भाई है बड़ी तकलीफ में। वहां पे मुसलमानों की भी एक बहुत छोटी आबादी है मगर अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की, उनको सहूलत देना हमारा काम है। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हुकूमत की जानिब से इसका रुख लाइए। सब फॉरेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट is rupees 1063.87 crores in the current budget. According to the note on demands for the grant and outcome budget, what was known as the Telangana Haritaharam program is renamed as Vana Mahotsav Mass Afforestation Program with the objective to increase the green cover from 24% to 33% in the state. Kariye sab. The outcome budget mentioned that an ambitious infrastructure development plan has been launched for Nehru Zoo Park, Hyderabad, which is among the top 10 zoo parks in the India and attract 30 lakh visitors. साहब मेरी एक गुजारिश है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी एक गुजारिश है, एक विजिट चलिए साहब, बहादुरपुर में आता है साहब, आप चलिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क को, एक शानदार पार्क है जहां पे 30 लाख से ज्यादा लोग वहां पे आते हैं।
जानवरों कम हो रहे हैं, वहां पे और बेहतर हम सहूलत कर सकते हैं। अगर आप आएंगे तो होगा। साहब, बागायाम जो असेंबली के बाजू के, जिसे पब्लिक गार्डन किया जाता है, बागायाम एक शानदार मुकाम है जिसको हम और बेहतर ग्रीनरी ला सकते हैं। बागायाम के डेवलपमेंट की बात करिए साहब, बागायाम को आगे बढ़ाइए। Civil Supplies Administration covers a budgetary demand of rupees 2,498 crores, including rupees 1,879 crores as subsidy on rice and rupees 506 crores for LPG subsidy under Mahalakshmi scheme. The subsidy on rice and LPG is estimated at rupees 998 crores under SC-SDF and rupees 340 crores under ST-SDF. The note on demand points out there are 42.9 lakhs eligible beneficiaries identified under Mahalakshmi scheme, and 68.67 lakh cylinders were delivered, and rupees 189.47 crores transferred to beneficiary accounts towards LPG subsidy. The public distribution system in the state covers 2.82 crores beneficiaries holding 89.99 lakh ration cards. Another 25 lakh families, including 5.5 lakh in the GHMC areas, applied for fresh ration cards during the Praja Palana program earlier this year. A cabinet subcommittee has been formed to formulate the guidelines for issue of new ration cards, and the government proposes to invite new application after this is done. However, I would request the Civil Supplies Minister, Janab Uttam Kumar Reddy Sahab, to ensure that the application filed under Praja Palana program are also processed under the guidelines. Further details can be. प्लीज हुसैन साहब कंक्लूड कीजिए। ये सब बस आपसे 25 ये मिनट बात हो करके कंक्लूड करूंगा साहब कि जो हमने बात की स्पोर्ट्स के लिए और दूसरे चीजों के लिए, उसकी बात करिए साहब। यहां पे ठहर के आप स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, ड्रग्स फ्री करने की बात करते हैं। ड्रग्स फ्री करने का एक कदम यह भी है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, और मल्लेस वो काम में लगी हुई है। आपको सिर्फ हमारा साथ देना है, और इंशाल्लाह हम यहाँ के यूथ के लिए बेहतरीन इंतजाम कर सकते हैं। व्हाइट राशन कार्ड्स के लिए आपके तरफ से हुकूमत के लिए की नजर लाता हूं सब, उम्मीद है, और इस मौका देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।